Hello, hi Ashwin, how are you? I'm fine, sir. Fine. Okay. चलो इसे स्टार्ट करते हैं. Uh, So this is a snap interview for geotechnical engineering, right? Yes, sir. Okay. चलो अश्विन तो स्टार्ट करते हैं. So tell me briefly something about yourself and what is your BTech project? Okay, sir. So this is Ashwin Vijayaban. I belong to Chandrapur. I have completed my SSC and HSC from Chandrapur itself with a CGPA of 9.2 and Hmm. 66.67% in SSC, HSC. I have completed my B from GHRAT Nagpur with a CGPA of 7.84. My final year BE project was on experimental analysis of concrete by replacing coarse aggregate with steel slab. Experimental analysis of concrete by replacing coarse aggregate with steel Steel slag. slab. Okay. Yeah, go ahead. Yes, sir. Okay. So why you want to pursue PhD? So because I want to do the further education and in a research field area, due to which I want to pursue PhD. Okay. So have you didn't applied for any kind of job? No, sir, I haven't applied for any kind of job. Okay. So when did you graduated? 2017, sir. Okay, and you have not applied for any kind of job. Can you explain this? Sir, I was helping my father in his civil projects, Hmm. civil engineering projects. So that's why I haven't applied. Like I was working with him. Okay, okay. So where else have you applied? Uh, so I have applied nearly to every college, like wherever I Hmm. was eligible for MS, PhD, and MTech. For MS, PhD, and MTech. Okay, ठीक है. So why you are not pursuing MTech directly or going for PhD? Any specific reason? Mm, so no, sir. Actually, I got a call for PhD right now. I have applied for both MTech as well as MS and PhD. Okay. So tell me, what is your favorite subject? In soil mechanics. Yes, this is a geotechnical Yeah. engineering. So in soil mechanics, yeah. Index properties of soil. Index properties of soil. Anything else? Mm, so then permeability. Okay. So let me just get it there. Okay. So differentiate between inorganic and organic soil. So organic soil is one which consists of organic matters. Hmm. Specifically, the matters which have carbon content in it, like leaves, then plants and animals waste. So this is known as Okay. organic soil. While as in inorganic soil, it doesn't have any organic matter. Okay. Correct. So tell me, what is the consistency index? Uh, Consistency index. Yes. So uh, consistency is the firmness of the soil, and it determines the index determines the type of soil, whether it is in liquid state or plastic state, and so we can determine it by consistency index. So what is the formula? Consistency index is WL minus W divided by WL minus WP Okay. ratio. Yeah. Yeah. What is this WL minus WP? Liquid limit minus water content of the soil divided by liquid limit divided by the plasticity index. So what does plasticity index actually show you? Plasticity index is the difference of liquid limit and plastic limit. That means it shows us the range that in towards whether the soil is plastic or towards the liquid. Okay. Any practical use where we put water in this plastic limit range? WL minus WP. Any practical example? Practical example. No, sir, I'm not recalling it. Okay. Actually, what happens is आपने देखा है जहाँ पे गड्ढे बनते हैं मटके. हाँ, हाँ, Okay, so in that soil we mix water. The potter actually will mix water. अगर हाँ, पानी बहुत ज्यादा डाल देगा WL से ज्यादा तो it will try to float. yeah, करेक्ट. अगर पानी कम होगा तो सॉइल किस में रह जाएगा? सॉलिड स्टेट में. yeah. तो हमें पानी उतना डालना है कि वो प्लास्टिक स्टेट Plastics. में रहे और मोल्ड हो सके. Yes, sir. करेक्ट. ओके. सो टेल मी व्हाट इज लिक्विड लिमिट एंड उसको कैसे मेजर करते हैं? Liquid limit is the minimum water content at which the soil fluid flow. ओके And ठीक है. उसको मेजर कैसे करते हैं? इसको measure sir
कैसाग्रेंड apparatus से करते हैं। एक मोल्ड बनाया जाता है सॉइल में वाटर डाल के, एंड उसको फिर कंटिन्यूअसली टैप किया जाता है, जिसमें वो एक इस कैसाग्रेंड apparatus में एक ग्रूव बनाया जाता है पहले, और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली टैप होने के बाद एट 25 नंबर ऑफ ब्लोस हमें लिक्विड लिमिट मिलता है। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आई हैव अ वाटर कंटेंट ऑफ लेट्स से ट्रायल पे लिया 25%, ओके, और उसमें अगर 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे अगर वो ग्रूव क्लोज हो जाता है तो लिक्विड लिमिट विल बी 25%, इज दैट सो? सर अगर उसके या 25 नंबर ऑफ फ्लोज पे हम लोग लिक्विड लिमिट बताते हैं, ये है। ओके, तो मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे आपके पास कोई सॉइल है, ओके, ऐसा हो सकता है कि आई ऐड वो 18% बिफोर ऑफ वाटर, 25 नंबर के पहले भी आ सकता है, तो वो अपने वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है कि अपन ने कितना पानी डाला है। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। सर 2-3 ऑब्जर्वेशन लेते हैं इसमें। 2-3 ऑब्जर्वेशन से आ जाता है? अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होता है? लिक्विड लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट और नंबर ऑफ ब्लोज का? सर ये फॉलिंग ग्राफ रहता है। आप बना के बता सकते हैं? या just a minute, sir. दिस इज स्ट्रेट लाइन। या आपने उल्टा नहीं लिया, लिख दिया, एक्सेस आपने चेंज कर दिया है। हाँ सॉरी सर, उल्टा हो गया। हाँ, तो इसके स्लोप को क्या कहते हैं? स्लोप को अटरबर्ग लिमिट। हाँ, सॉरी, सर आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग कि इट इज अटरबर्ग लिमिट। यू डू नॉट गेस। आपको नहीं पता है तो आप सीधा मना करें। ठीक है सर, नहीं डू पता। नॉट गेस, दैट इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। ओके। अच्छा, हाँ अब मुझे बताएं कि अगर ये कर्व, ओके, जो आपने ऐसे कुछ बनाया है, अगर वो हाँ, फ्लैट होता जाएगा तो स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा? कम हो गया, ज्यादा हो? अगर कर्व फ्लैट होता जाएगा, अभी अभी लाइक कर्व ऐसा है, स्ट्रेंथ यस, विल डिक्रीज सर। डिक्रीज स्ट्रेंथ होगी। विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज? डिक्रीज सर। कर्व फ्लैट होगा तो डिक्रीज होगा, एंड स्टीप कर्व रहेगा तो वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हमारा कर्व फ्लैट होता जाएगा तो स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, डिक्रीज नहीं करेगा। आपने एक तो कर्व का एक्सेस चेंज कर रखा है, ओके, तो उसको थोड़ा सा देखो। जैसे कर्व हमारा फ्लैट होता जाएगा तो स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ओके सर। नाउ डू यू नो व्हाट इज सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड स्टेज? सर सैचुरेटेड स्टेज मीन्स जब पूरे पोर्स वाटर से भर जाता है। और सुपर सैचुरेटेड? मीन्स अबव वाटर डालते हैं उसमें, मतलब ज्यादा पानी रहता है। ठीक है, ओके। आपने सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ा होगा, इसके सेडिमेंट। अंदर इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हाँ फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। तो उसके अंदर हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? सेडिमेंटेशन एनालिसिस में लॉ, सर रिकॉल नहीं हो रहा है। स्टोक्स लॉ नहीं पढ़ा? हाँ स्टोक्स लॉ पता है सर। हाँ स्टोक्स लॉ यूज होता है उसमें, सेडिमेंट्स कितने वेलोसिटी से या फिर कब वो सेटल होगा उसमें हम निकालते हैं उसका फॉर्म बाय। इसके असम्पशंस क्या हैं स्टोक्स लॉ के? स्टोक्स लॉ के असम्पशन, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल स्फेरिकल रहेंगे। उसके बाद इनका सेटलमेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। एंड बस सर इतना ही याद है। तो And पढ़ा नहीं है इंडेक्स प्रॉपर्टी सही से? सब पढ़े लेकिन। तो सिंपल सिंपल आपसे थ्योरेटिकल पूछ रहा हूँ मैं आपको। स्टोक्स लॉ का एग्जैक्ट मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ एप्लीकेशन भी नहीं पूछा। आपको पता है स्टोक्स लॉ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में लगता है? हाँ कहाँ लगता है? सर, एनवायरनमेंट में जब हम, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में लगता है जब सॉइल का प्यूरिफिकेशन वगैरह जब होता है उस टाइम पे। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल मतलब जो आपको दिखता है। स्काई डाइविंग सुना है? हाँ स्काई डाइविंग, प्लेन से एयर का पैराशूट लेके कूदते हैं, हाँ। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोक्स लॉ। ओके। आप पैराशूट तब ओपन करोगे जब आप एक टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच कर चुके हो, अदरवाइज द पैराशूट कैन क्रैश, फट सकता है वो।
तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोक्स लॉ। सेडिमेंटेशन ही तो है, कोई आदमी ऊपर से इनफाइनाइट फ्लूइड मीडियम में गिर रहा है, एयर इज आल्सो अ फ्लूइड। Yeah. ओके, ठीक है। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी? Coefficient of uniformity, it is the ratio of d60 by d10, मतलब 60% particles are finer than the above this size and 10% of particles are above this size, ऐसा। so इससे हम लोग gravel soil well graded है या poorly graded है ये पता करता है। ओके, बेसिकली यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? d60 by d10 तो है ही है, cu हमें बताता क्या है? so यही नहीं, इससे हम लोग ग्रेडेड या वेल ग्रेडेड है वही पता करता है ना। अच्छा, और cc से कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या बताता है? इट्स d30 स्क्वायर अपॉन d60 into d10। हाँ, वो तो फॉर्मूला हो गया, बताता क्या है? देखो बेसिकली सीसी हमें ये बताता है कि पार्टिकल्स का शेप कैसा है, वो कितने स्फेरिकल। ठीक है, सीसी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा पार्टिकल उतना ज्यादा स्फेरिकल होता जाए, इट विल रीच क्लोज टू स्फीयर। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें ये बताता है कि कितने पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके साइज ऑलमोस्ट सेम। ओके, ये मीनिंग है इनके। ठीक है सर। ओके, हम लोग कौन सी सीव को यूज करते हैं टू डिटरमाइन बिटवीन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल? कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन, 75 माइक्रोन सीव। कौन सा? 75 माइक्रोन सीव। हाँ, 75, करेक्ट करेक्ट, गुड, 75 माइक्रोन सीव। Now tell me, what is an where do we use sand cone method? Sand? Sand cone method or sand replacement method? Sand replacement method. एक मिनट सर, ये इन सेटू मेथड है। इन डेंसिटी इंडेक्स में इन सेटू डेंसिटी बताने के लिए मेथड यूज होता है फील्ड कहाँ में। पे यूज करते हैं? फील्ड में कहाँ पे यूज करते हैं? फील्ड में कहाँ यूज करते हैं मीन्स? हाईवेज और पेवमेंट्स पे यूज करते हैं। आप तो पॉइंट नहीं आ पा रहे हो। फील्ड में मतलब कहाँ पे मैक्सिमम उसका यूज हाईवेज और पेवमेंट पे होता है। ओके ओके, नाउ टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? Hydraulic gradient is the head loss of water per unit length. ओके, हेड लॉस ऑफ वाटर पर यूनिट लेंथ। तो अब मुझे हेड लॉस बता सकते हैं, हेड लॉस कैसा हो रहा है? किसको सर बोल रहा हूँ मैं बेसिकली हेड लॉस? जो डिफरेंस इन वाटर लेवल्स रहता है उसे हेड लॉस बोलते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर सॉइल से अगर वाटर फ्लो हो रहा है वेदर इट्स फ्रॉम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो उनके जो वाटर लेवल्स में जो डिफरेंस रहेगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट है अपर पॉइंट में, उसके बीच में जो हेड लॉस होता है Okay. उसका डिफरेंस हेड लॉस होता है। ओके, करेक्ट। टेल मी, आपने सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी सुना है? हाँ, सीपेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, राइट। इनमें से कौन सा बड़ा होता है? सीपेज v by n होता है ना, सीपेज वेलोसिटी बड़ा होता है। ओके, क्यों होता है बड़ा? सर सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इज v by n, सो पोरोसिटी जब डिवाइड होती है तो पोरोसिटी विल बी स्मॉलर देन 1, सो वो बड़ा रहेगा। ओके, गुड। मतलब ऐसा जो फ्लो वेलोसिटी। ओके, लास्ट क्वेश्चन दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आपने ये पढ़ा है कि इक्विवेलेंट परमेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में kx है, y डायरेक्शन में ky। तो हमारा इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कितना आता है? दोनों का अंडर रूट ऑफ kx ky। ओके, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन शुरू होता है। जस्ट टेल मी, परमेबिलिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी? परमेबिलिटी इज अ वेलोसिटी। हाँ, या सो या सिंपल सा वेलोसिटी है ना? वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। वेक्टर क्वांटिटी सिंपल सा, जो भी वेलोसिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब देखो, परमिएबिलिटी एक्स डायरेक्शन में kx है, y डायरेक्शन में ky है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो कितना आना चाहिए? दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे हैं। अंडर रूट, अगर वैसा देखे जाए तो सर अंडर रूट ऑफ kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर इससे आना चाहिए। हाँ, और होता कितना है? अंडर रूट ऑफ kx ky। हाँ, सो दैट्स माय क्वेश्चन। सोचा है कभी ऐसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ आइडिया है इसके बारे में?
नहीं सर, अभी आपने बोले तो ऐसा पहली बार सुन रहे ओके, हैं, दिमाग में पहली बार जा रहा हाँ चलेगा, दिमाग अभी चलेगा, थोड़ा थोड़ा उसमें चलाना पड़ेगा। ओके, टेल मी व्हाट इज इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी। है। कौन सी परमेबिलिटी? इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी। नहीं सर, नहीं पता। ओके, व्हाट इज डार्सीज लॉ। Darcy's law gives the velocity of flow V equals to Ki. ओके, और डार्सीज लॉ के क्या क्या असम्पशंस हैं। Assumptions सर नहीं याद। Darcy's law. अच्छा, ओके, ये आप उसमें बुक में पढ़ के आपको मिल जाएगा इसके हाँ, असम्पशंस क्या क्या है। ओके, फाइनल चीज है, फाइनल क्वेश्चन है, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट कौन सी टाइप की सॉइल के लिए यूज करते हैं। coarse grained soil. करेक्ट, ठीक है, कोर्स कंसर्न, तुक्का नहीं मारा ना। नहीं नहीं। हाँ, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अश्विन एक बार थोड़ा सा और थ्योरी वापस और पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मोरलेस आपका देखो बाकी सारी चीजें तो परफेक्ट हो चुकी है, कि क्यों करना चाहते हो, पीएचडी क्यों करना चाहते हो, बीटेक के बाद प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया है, ऑल वो सारे एचआर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, वो आपके यस सर। बहुत मास्टर हो चुके हो जवाब देने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दिक्कत आपका सिर्फ टेक्निकल थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो इसको। यस सर। अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है, पिछली बार से थोड़ा बेटर हुआ है, बट इसको थोड़ा सा इम्प्रूव और किया जा सकता है ना। तो ठीक एक है काम करते हाँ। हैं, कब है इंटरव्यू। परसों 24th। परसों 24 को कितनी बजे। 4 o'clock। सो उन्होंने 2 o'clock को लॉग इन करके रखने बोला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग मॉर्निंग में करते हैं 24 को। ठीक। ठीक है, एक फाइनल और करते हैं। हाँ। ठीक है, आप एक काम करो, हरिंदर मैम को कॉल करना, उनको बोलो कि मैम मुझे एक मॉक करना है, 24 को मेरा मॉक है, और 24 को ही करना है, क्योंकि कल तो मैं ऑक्यूपाइड हूँ पूरा दिन, कल नहीं हो पाएगा। आज भी अभी, ओके, अभी से सारे मॉक्स ही लगे हुए हैं। ठीक है सर। ठीक है, उनको मैम को कॉल करना कि मैम मुझे 24 को मॉक करना है, तो कब कर सकते हैं। इसका इसका भी करना था, रूरल टेक्नोलॉजी का कल जो रहेगा। रूरल टेक्नोलॉजी का कल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो आपके पास आ जाएगा, टाइम आ जाएगा कुछ। उसमें आज नहीं आए थे, आज रूरल टेक्नोलॉजी के हुए थे मॉक। आज सर ये थोड़ा ऑक्यूपाइड थे इसलिए नहीं आ पाया था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार सर से बात करना, सर या हरिंदर मैम से बात करना, मॉक के लिए, स्नैप के लिए तो आप डायरेक्टली मुझसे ही बात कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। चलो। आप मेरे को एक बार बता सकते हैं क्या क्या मुझे करना है, कहाँ कहाँ मैं अटका हूँ? बेसिक चीजें ही हैं सारी, आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी एक बार पूरा पूरा का पूरा गो थ्रू करो, कोई सी भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपसे स्लोप पूछा, तो वो स्लोप आपको पता नहीं है, ओके, फ्लो इंडेक्स बोल रहे हैं उसको। तो वैसी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बार वापस से गो थ्रू करो। ओके। ठीक है, ठीक। पूरा का पूरा सॉइल पढ़ लो, पूरा सॉइल पढ़ लो, क्योंकि वो सिर्फ सिर्फ एक चीज इंडेक्स प्रॉपर्टीज में ऐसा लगता है कि सफिशिएंट नहीं पड़ेगा, तो आपको सॉइल से कुछ और भी पूछेंगे। तो मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो मैंने लिक्विफिकेशन ऑफ सैंड पे दिया था। हाँ, तो सो उससे क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो फिर सीपेज पूरा पढ़ लिए तो। हाँ, पूरा सीपेज लिक्विफैक्शन वगैरह वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर।